Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Camera International Science College at Talagang. Welcome to all the student classroom training की video lecture में. I hope you would have prepared all the lecture and you would have prepared the notes, because the notes are very important for you for your upcoming year. If you are going to make the notes, these notes will be beneficial for your future and for your upcoming year regarding your education. Dear student, you must make the notes, because when you are going to make the notes, it means that you are preparing every topic and every lecture. And when you are going to prepare every topic and every lecture, it will be beneficial for your exams, it will be beneficial for your future, it will be beneficial for yourself. If you want to move further in education, if you want to get another types of education, if you want to get higher education, then it is part and parcel to make your English healthy and strong. If you are going to make your English healthy and strong, you will be able to perform in every subject, whether you are being studied physics, chemistry, bio, etc. Dear student, now you have become the part of inter level. There are some responsibilities on your shoulder. These responsibilities must be fulfilled by you. Dear student, in previous lecture I was talking about a very important topic which is regarding English language, and that topic was use of imperative sentences. I am going to discuss another very important topic today, which is also given a weightage in English language: use of let. Most of the students don't know that what is the use of let, how the let is used. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, they don't know about the use of let, वो let का इस्तेमाल नहीं जानते. But I am going to teach you about the let today. I am going to teach you that how the let is used today. Dear student, आपने मेरे साथ रहना है. Do not skip the video. आपने वीडियो को स्किप नहीं करना. आपने मेरे लेक्चर को, you will have to follow my lecture. आपको पूरा लेक्चर फॉलो करना है और आपने इसके यकीनन नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे आप प्रैक्टिस नहीं करोगे. एंड व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस एनीथिंग, यू आर नॉट परफेक्ट इन दैट थिंग. आप उस चीज़ के अंदर कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकते. सो प्रैक्टिस इज़ द मस्ट. Practice is the key to achieve any goal. If you want to achieve your goals, then you will have to practice every subject, everything with interest. Interest is the main thing. If you have interest in yourself regarding your study, then there is no issue. Then there is no problem regarding your study. If you have no interest, you cannot do anything. ये आपके ऊपर बर्डन बन जाएगा, ये आपके ऊपर बोझ बन जाएगा. क्योंकि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो एजुकेशन को बोझ मत समझें. आप अपनी तालीम को एंजॉय करें, इसको अपनी लाइफ का पार्ट समझें और इस तरह इसको पढ़ें, इंटरेस्ट के साथ पढ़ें. तो यकीन करें, आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे, 10 मिनट का भी पढ़ेंगे, तो आपके लिए काफ़ी होगा. तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ लेट. लेट होता क्या है, कहाँ पर इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सबसे पहले डियर स्टूडेंट, जब लेट का हम इस्तेमाल करते हैं तो देयर आर 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. नंबर 1, जब बात की जाए परमिशन की, परमिशन मीन आप किसी के हवाले से इजाज़त मांग रहे हैं. यानी you are going to say someone that I want to do this thing, या that person want to do this thing, या he wants to do this thing. यानी वो बंदा ये काम करना चाहता है. then in English language you are bound to use let. जब आप किसी से किसी बात की परमिशन मांगने जा रहे हैं, इजाज़त मांगने जा रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, let का इस्तेमाल करना पड़ता है. एंड सेकंड रिकमेंडेशन. रिकमेंडेशन को हम उर्दू के अंदर तजवीज़ का नाम देते हैं.
जब आप किसी को व्हेन यू आर गोइंग टू रिकमेंड समथिंग फॉर समवन, जब आप किसी को कोई चीज़ के हवाले से तजवीज़ देने जा रहे हैं तो देन यू विल हैव आल्सो यूज़, आपको यहाँ पे यू विल हैव टू यूज़ क्या करना पड़ता है, वहाँ पे भी आपको लेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग लेट, देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग लेट। नंबर वन इज परमिशन। इफ यू वांट टू गेट सम टाइप ऑफ परमिशन फॉर योरसेल्फ, फॉर समवन एल्स, और व्हेन यू आर गोइंग टू रिकमेंड समथिंग फॉर समवन, जब आप किसी को कोई तजवीज़ देने जा रहे हैं या किसी से किसी काम के हवाले से अपने लिए या किसी और के लिए इजाज़त मांगने जा रहे हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर देयर इज़ अ टॉपिक विच इज़ नाउन एज द नेम ऑफ लेट। एक टॉपिक है जिसका नाम लेट है, उसको हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब डियर स्टूडेंट, इससे रिगार्डिंग कुछ रूल्स हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं कि वो रूल्स क्या है। सबसे पहले नंबर वन इंतहा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको उर्दू के अंदर लिखने जा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। लेट के बाद हमेशा पर्सनल प्रोनाउन की मफ़ऊली हालत आती है। व्हाट इट मीन्स, मैंने आपको एक लेक्चर के अंदर बताया था कि बाय और लेट के बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ केस इन इंग्लिश लैंग्वेज। वन इज़ कॉल्ड सब्जेक्टिव केस एंड द अदर केस इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमेशा जब भी लेट का हम इस्तेमाल करेंगे, सेम लाइक बाय, जब हमने बाय का इस्तेमाल किया था तो हमने डियर स्टूडेंट क्या इस्तेमाल किया था, वहाँ पे भी हमने हमेशा मफ़ऊली हालत इस्तेमाल की, यानी ऑब्जेक्टिव केस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केस इन इंग्लिश लैंग्वेज। नंबर वन इज सब्जेक्टिव केस एंड द अदर केस इज ऑब्जेक्टिव। जब भी आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, ये याद रख लें, ये अक्सर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर इस तरह के जो है सेंटेंसेस ऐड किए जाते हैं। लेट के बाद हमेशा पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, एक नाउन होता है, एक प्रोनाउन होता है। यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। जब मैं पार्ट ऑफ स्पीच बताऊंगा तो आप मज़ीद इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे, वरना आप 9th एंड 10th लेवल पे यू हैव ऑलरेडी टॉट दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप इनको पढ़ चुके हैं। नाउन नाम को कहते हैं, किसी शख्स, किसी जगह, किसी प्लेस, पर्सन या थिंग के नाम को हम नाउन कहते हैं। जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो, यानी द वर्ड विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन, जितने भी पर्सनल प्रोनाउन हैं उनकी डियर स्टूडेंट मफ़ऊली हालत आती है, यानी उसका एक ऑब्जेक्टिव केस होता है और एक सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या है, ही, शी, इट, दे, वी, अस, यू, इट। अब इनके ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम है, हिज है, हिम है, हर है, देम है, अस है, मी है, एटसेट्रा। तो जब भी, मैं पहले आपको एक लेक्चर के अंदर पूरा चार्ट बना के दे चुका हूँ, when you are going to use let in a sentence then you must have to follow, आपको लाजमी क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। किसको फॉलो करना पड़ता है, आपको वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस को फॉलो करना पड़ता है। ये रूल नंबर 1 है। अब रूल नंबर 2, यहाँ पे लेट के बाद फेल की, यानी फॉर्म ऑफ द वर्ब, कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट। फेल की पहली हालत इस्तेमाल की जाती है, यानी जब भी आपने लेट का डियर स्टूडेंट इस्तेमाल करना है तो आप हमेशा फेल की पहली हालत का इस्तेमाल करेंगे, यानी गो, वेंट, गॉन। यू आर गोइंग टू यूज़ गो, नॉट, वेंट, नॉट, गॉन। आपने पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है, ठीक है। जब भी इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट, प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड,
नाउ राइट नाउ यू आर गोइंग टू यूज़ प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड। ना आपने प्रेजेंटेड करना है, ना प्रेजेंटेड थर्ड वाला करना है, बल्कि आपने क्या करना है, आपने वहाँ पे हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो डियर स्टूडेंट, रूल नंबर 3 विच इज़ रिलेटेड टू नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी जब आप नेगेटिव फिक्रात के अंदर, नेगेटिव फिक्रात में आगाज़ में, यानी जब जुमला स्टार्ट हुआ है डू नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये 3 ही रूल है, या आपने तीनों रूल आपने याद रखने हैं। जैसे जो पिछला टॉपिक था विच वाज रिलेटेड टू इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, वहाँ पे भी हमने नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमने क्या इस्तेमाल किया था, डू नॉट का इस्तेमाल किया था। व्हेन वी मूव्ड फ्रॉम positive sentences or affirmative sentences to negative sentences, there we used, हमने वहाँ पे क्या इस्तेमाल किया, do not का इस्तेमाल किया। same like that, उसी तरह यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जब हम negative sentences बनाएंगे तो यहाँ पे भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे डियर स्टूडेंट, do not का इस्तेमाल करेंगे। let's स्क्रीन शॉट, यहाँ पे आप देखिए, अब मैंने यहाँ पे भी एक है let's take a screenshot, तो यहाँ पे क्या लें आप, एक स्क्रीन शॉट लें। उसके बाद मैं मज़ीद आपको आगे पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और ये स्क्रीन शॉट में क्यों कहता हूँ बार बार, ताकि आप अच्छे तरीके से इन रूल्स को लिख सकें और इसके नोट्स बना सकें। Dear student, I hope you would have taken a screenshot. Now, अब हम इसके जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करके इसके ऊपर हम सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि ये आपको टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम बात करते हैं तो हम इस चीज़ पे बात करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट? मुस्बत फिक्रात। अब मुस्बत फिक्रात की जो इक्वेशन बनती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेट का इस्तेमाल करना है, मैं बता चुका हूं, प्लस पर्सनल प्रोनाउन की मफूली हालत, यानी आई की जगह मी, शी की जगह हर, दे की जगह देम, ही की जगह हिम। और अगर कोई नाउन है तो फिर डायरेक्ट नाउन आ जाएगा, उसकी आपने कोई वो डायरेक्ट नाम है तो आपने नाम लिख देना है। प्लस अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी फेल की पहली हालत, और प्लस अगर वहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने की एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आपने नोट कर लेना है, ताकि आप इसको फॉलो करें और आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अब पहले हम सबसे पहले परमिशन के जुमले डिस्कस करते हैं। परमिशन, मिसाल के तौर पे उसे कमरे में आने दो, यानी किसी के लिए इजाज़त मांगनी जा रही है। बच्चों को फूल तोड़ने दो। डियर स्टूडेंट, दोनों जुमलों के अंदर अगर आप गौर करें तो यहाँ पे इजाज़त मांगी जा रही है, किसी के लिए कोई ना कोई काम करने की इजाज़त मांगी जा रही है। अब इसको हम बनाएंगे कैसे? देखिए, उसे कमरे में आने दो।
अब यहां पे स्टार्ट क्या होगा, लेट से। अब हमने सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्टिव केस नहीं, ऑब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्ट का ही ऑब्जेक्टिव केस, उसे की इंग्लिश होती है ही, उसे, वो, ठीक है। तो इसके लिए हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे ही की मफौली हालत यानी ऑब्जेक्टिव केस, ही से क्या बन जाता है डियर स्टूडेंट, हिम बन जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, लेट हिम, लेट हिम। अब हमने लगानी है फर्स्ट फॉर्म, आने दो की इंग्लिश क्या होती है, कम, लेट हिम कम। आगे पार्ट क्या रह गया था, लेट हिम कम इन द रूम, यानी उसे कमरे में आने दो। देखें डियर स्टूडेंट, पहले लेट आया, फिर पर्सनल प्रोनाउन की मफौली हालत, फिर फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट इन द रूम। नेक्स्ट, बच्चों को फूल। अब देखें यहां पे मफौली हालत नहीं आएगी, डायरेक्ट नाउन आ गया। अगर प्रोनाउन होता तो उसका जो केस है वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होता है, तो यहां पे डायरेक्ट नाउन है, लेट द, डायरेक्ट आ जाएगा, बच्चों यानी चिल्ड्रन, let the children, a first form of verb, pluck the flowers, let the children pluck the flower, यानी बच्चों को फूल तोड़ने दो। यहां पे एक और एग्जांपल लेते हैं, मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दो। अक्सर जो है ना, ये जब टीवी एंकर बैठे होते हैं आपस में, व्हेन दे डिस्कस अबाउट एन इशू, तो वो अक्सर एक बंदा कहता है, जब उसको बोलने दिया जा रहा था तो वो कहता है मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दो, तो उसको वो इंग्लिश में कैसे कहता है, यू हैव ऑलरेडी हर्ड सो मैनी टाइम इन यूर प्रैक्टिकल लाइफ, आप सुन चुके हैं इस बात को। तो वो अक्सर ये कहता है, डियर स्टूडेंट आप एग्री करेंगे, लेट मी, मुझे, आई होता है तो हमने क्या लगाया, मी, पहले लेट फिर पर्सनल प्रोनाउन की मफौली हालत, लेट मी कंप्लीट माई टॉक, लेट मी कंप्लीट माई टॉक। तो यहां पे इस तरह से हम जो सेंटेंसेज फॉर्मेट करते हैं। नेक्स्ट, यहां पे मैं मजीद आपको बताने जा रहा हूं, अब यहां पे देखें, अब हम बात करने जा रहे हैं रिकमेंडेशन पे। और डियर स्टूडेंट, एक इंटरेस्टिंग बात, रिकमेंडेशन में हमेशा अस आता है, वाई। द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाई वी यूज ऑलवेज अस, बिकॉज जब आप किसी को कोई चीज़ रिकमेंड करते हैं, एक तो आप शामिल होते हैं और दूसरा वो शामिल होता है, और जब दो बंदे शामिल हो जाते हैं डियर स्टूडेंट, तो वहाँ पे जमा का सीगा बन जाता है और वही बन जाता है। मैं और साथ में कोई और आ जाए तो वही बन जाता है, यानी हम बन जाते हैं, और वही की मफौली हालत अस होती है, और रिकमेंडेशन में सब के साथ क्या आएगा, अस आएगा। अब इसके सेंटेंसेस कैसे होते हैं, सबसे पहले इस तरह के होंगे, आओ क्रिकेट खेलें, आओ सैर को चलो चाय पीते हैं। तो ये इस तरह के होंगे, चलो, आओ क्रिकेट खेलें, आओ सैर को चले। तो ये सारे के सारे, अब सब के साथ ये यहाँ तो इजी हो गया, विद एवरी पर्सन आपने क्या करना है, लेट अस, सब के साथ लेट अस। अब यहाँ पे देखिए, आओ क्रिकेट खेलें, अब बाकी सारा जुमला वही रहेगा, आओ क्रिकेट खेलें, लेट्स, इसको मुख्तसरन लेट्स भी कहते हैं, लेट्स यानी एपस्ट्रॉफी लगा के एस लगाते हैं, ठीक है। लेट्स प्ले क्रिकेट, हो गया जी। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ लेट्स गो फॉर ए, ये जो गो फॉर ए वॉक है ना,
ये पूरी की पूरी सैर की इंग्लिश है। यहाँ पे आप ये ना समझिएगा प्रेपोजिशन का इस्तेमाल है, बल्कि फॉर ए वॉक का मतलब होता है सैर। लेट अस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लेट अस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। चलो चाय पीते हैं, लेट्स यानी लेट अस टेक टी, लेट्स या लेट अस टेक टी। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपका क्लियर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट ले लिए। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस उर्दू के अंदर हम कहते हैं नफी फिक्रा। तो मैंने बताया था सबके साथ क्या ला जाएगा, डू नॉट लग जाएगा। अब देखिए, डू नॉट लेट, यानी लेट से पहले डू नॉट लेट द चिल्ड्रन प्लक द फ्लावर्स। सबके साथ आपने क्या लगा देना है, डू नॉट लगा देना है। Do not let us play cricket। तो यहाँ पे भी बन जाएगा do not let him complete his talk, यानी उसे अपनी बात मुकम्मल ना करने दो। और इसमें सेंस क्या आता है, मत ना, यानी यहाँ पे जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव के अंदर जो सेंस है ना, नहीं और मत, ये आता है। इसका सवालिया नहीं बनता, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस का भी इंट्रागेटिव नहीं बनता, सेम लाइक उसी की तरह इसका भी सवालिया जो है वो नहीं बनता। स्टूडेंट, मैंने बड़े धीमे अंदाज में, बड़े आराम से ये टॉपिक आपको समझाने की कोशिश की है। लेक्चर थोड़ा 20 मिनट से ऊपर हो गया होगा, लेंथी है, लेकिन आपने पूरे लेक्चर को फॉलो करना है ताकि ये टॉपिक आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।